Hello students, welcome in HPGK Hub. Special session for HPSSC staff nurse exam. Here we discuss most important question related to nursing exam and also clear all the doubts. Students, for full crash course, you can consult our professionals on the following WhatsApp number 82787 23715. Never take your eyes off the target. The successful warrior is the average man with laser-like focus. So students, never take your eyes off the target. Let's begin. First question of today is, cortisone is used as an effective anti-inflammatory drug in the treatment of. किसके ट्रीटमेंट के लिए कॉर्टिसोन का इस्तेमाल किया जाता है एज एन इफेक्टिव एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग? ऑप्शन ए हाई ब्लड प्रेशर, बी आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, सी आर्थराइटिस, डी diabetes. Yes students, you can take your answer and check your scorecard at the last of video and please share with me so I can check आपकी preparations कहाँ तक पहुँच चुकी है. Yeah, the right answer is option number C, arthritis. अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें, हाई ब्लड प्रेशर व्हेन आपका जो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रेंज 120-80 mmHg से ऊपर चला जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपरटेंशन. और हाइपरटेंशन का कॉर्टिसोन से कोई रिलेशन नहीं है. देन आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस इज अ हार्डनिंग, थिकनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वॉल्स ऑफ आर्टरीज. ड्यू टू cholesterol deposition, arteries become thick, hard and lost their elasticity. That condition causes obstruction in blood flow and it is known as arteriosclerosis. Next is arthritis. Arthritis is the inflammation of joints. See, next is diabetes. Diabetes is a inability to process blood glucose. So right answer here is option number C, arthritis. Next question is, hormones are transported to all parts of the body through. हार्मोन्स को बॉडी के सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? नर्व्स, ब्लड, लिम्फ, मसल्स. द राइट आंसर इज वेरी इजी क्वेश्चन, ब्लड. ऑप्शन ए नर्व्स इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करती हैं. लिम्फ इज अ क्लियर पेल कलर्ड फ्लूइड विच एक्ट एज अ फिल्टर एंड आल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स सच एज lymphocytes. Then muscles help in movement. Clear? Next question is, the product formed when amino acid molecules combine together is called. जब अमाइनो एसिड को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है? ए न्यूक्लिक एसिड, बी स्टार्च, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन्स. द राइट आंसर इज प्रोटीन्स. Why not nucleic acid? Nucleic acid is a polymer of nucleotides and starch is a polymer of carbohydrates. Carbohydrate are the compounds of carbon, hydrogen and oxygens. The last one is the protein, which are formed by the combination of amino acids. Clear? Next question is, deficiency of thyroxine in adults leads to a condition called. Adult में अगर thyroxine की deficiency हो जाती है तो उस condition में क्या कहा जाता है? उस condition में क्या हो जाता है? Option A, tetanus, B, cretinism, C, myxoedema, D, Graves' disease. Yes students, take your answer. Deficiency of thyroxine in adults result in low metabolic rate, increased body weight and tendency to retain water in tissues. Normally thyroxine हार्मोन का फंक्शन क्या रहता है? It increase metabolic rate by increasing oxygen consumption. So here right answer is option number C, myxoedema. इसमें क्या रहता है, जब अडल्ट्स में थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके कारण उनका मेटाबॉलिक रेट डाउन चला जाता है, बॉडी वेट इंक्रीज करता जाता है और वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी जो टिश्यू में वो बढ़ती जाती है. एंड दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज गल्स डिजीज. मिक्सोडीमा इज आल्सो नोन एज गल्स डिजीज और गल्स डिजीज. एंड बट इज टेटनस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन काउज्ड बाय बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई. ये बैक्टीरियम क्या करते हैं? टॉक्सिन रिलीज करते हैं. ये जो टॉक्सिन पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन काउज करता है एंड दैट कंडीशन इज नोन एज टेटनस और लॉकजा. क्रिटिनिज्म इज आल्सो नोन एज बौनापन, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हो बौनापन. तो इसमें क्या रहता है, जब चाइल्डहुड में जैसे बर्थ होता है बच्चे का, उस टाइम अगर आयोडीन की कमी हो जाती है और थायराइड ग्लैंड जो वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती है तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो जाती है, फिजिकल डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है, उसमें लर्निंग एबिलिटीज़ जो है वो उसकी वीक हो जाती हैं.
वीक रह जाती हैं. दैट कंडीशन इज नोन एज क्रिटेनिज्म. और ये भी क्यों होती है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन. लेकिन ये आपकी देखी जाती है बर्थ के इमीडिएट बाद, अर्ली चाइल्डहुड में. एंड मिक्सोडीमा इन दी अडल्ट स्टेज. नेक्स्ट ग्रेविस डिजीज क्या रहती है? ग्रेविस डिजीज आल्सो रिलेटेड टू थायरॉक्सिन और थायरॉयड ग्लैंड. इट्स अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. नॉर्मली पिट्यूटरी ग्लैंड जो वो थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कंट्रोल करता है, हार्मोन रिलीज करता है, और जो थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो थायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं. लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में ही कुछ ऐसी एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं जो थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मिमिक करना स्टार्ट कर देती हैं. TSH हार्मोन को ही मिमिक करना स्टार्ट कर देती हैं और इसकी जगह खुद ही वो थायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर देती हैं. जिसके कारण क्या होता है, थायरॉयड ग्लैंड जो जब स्टिमुलेट हो जाते हैं ज़्यादा अमाउंट में, तो वो ज़्यादा अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देती है. जिससे जब थायरॉक्सिन हार्मोन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो मेटाबॉलिक रेट जो काफ़ी हाई चला जाता है. और दैट डिसऑर्डर इज नोन एज ग्रेविस डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुमेन हैविंग normal limbs may sometimes give birth to babies with deformed limbs. This must be due to एक औरत है जिसमें नॉर्मल, इसके खुद के लिम्स जो वो नॉर्मल है, लेकिन वो एक डिफॉर्म लिम्ब वाले बच्चे को जन्म देती है. तो उसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बी म्यूटेशन, सी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, डी नेचुरल सिलेक्शन. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी म्यूटेशन. म्यूटेशन आर द सडन चेंज अकर इन DNA सीक्वेंस. अगर हम बात करें स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज अ थियरी ऑफ इवोल्यूशन एंड इट वाज गिवन बाय अरिस्टोटल. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी लिविंग मैटर अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, और ये थियरी जो बाद में फेल हो गई थी. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इट्स द फर्स्ट थियरी ऑफ इवोल्यूशन, आल्सो नोन एज लेमार्किज्म, गिवन बाय लेमार्क. इसके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ टाइम में कोई भी कैरेक्टर एक्वायर्ड करता है तो वो उन कैरेक्टर्स को अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है. Then next is natural selection. Natural selection was given by, concept of natural selection was given by Charles Darwin in 1859. तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे ही नेचर के अकॉर्डिंग एडेप्टेशंस डेवलप होती चलती हैं और जो वेल अडेप्टेड फीचर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते चलते हैं. दैट इज नेचुरल सिलेक्शन. क्लियर स्टूडेंट्स? सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी म्यूटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन फूड काउजेज सिंपल ग्वाइटर. इनमें से किसकी कमी के कारण ग्वाइटर होता है? सोडियम, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम. वेरी इजी क्वेश्चन. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आयोडीन. आयोडीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन. नेक्स्ट इज अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की, डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम इज नोन एज हाइपोनेट्रियम. सोडियम एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट. इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन एंड अराउंड द सेल. अगर सोडियम का अमाउंट कम चला जाता है तो हमारी बॉडी में वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है और सेल जो वो स्वेल करना स्टार्ट कर जाते हैं और अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्थ डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं. एंड डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज नोन एज एनीमिया. एंड डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया. इट रिजल्ट इन डिजीजेज ऑफ वोन्स लाइक रिकेटस, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस एटसेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्मोन दैट इज इंजेक्टेड टू प्रेग्नेंट वुमेन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इज. डिलीवरी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन को कौन सा हार्मोन इंजेक्ट करवाया जाता है? ए वैसोप्रेसिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी एंड्रोजन, डी ऑस्ट्रोजन. स्टूडेंट्स अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो वहां से ही आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन हार्मोन कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एज वेल एज लैक्टेशन प्रोसेस. सो दिस हार्मोन इज इंजेक्टेड टू प्रेग्नेंट वुमेन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. अगर हम बात करें वैसोप्रेसिन की, वैसोप्रेसिन इज आल्सो नोन एज ADH, antidiuretic hormone. It regulate the functioning of kidneys, etc. Then androgen is a group of hormone and it plays a role in male traits. It's also known as male hormone. Next is estrogen. Estrogen is present in females. It's known as female sex hormone. It helps in the development of reproductive organs, reproductive system and secondary characters. Clear? Next question is the outer layer of the eye wall is, again very easy question, sclera, choroids, retina, conjunctiva. Here the right answer is option number A. Sclera is the outermost layer of eye wall. Let's see. This is the anatomy of eye wall. The outermost layer is
sclera. This is the outermost layer, sclera. Inner to sclera is choroid. Choroid is a thick pigmented layer and sclera is a thin non-pigmented layer. Clear? Next question is, the smallest bone in the human body is. Human body में सबसे छोटी bone कौन सी है? Again easy question. Option A, incus. B, stapes. C, malleus. D, sternum. Most important question. हर गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम रिपीटेड देखने को मिलता है. Yes, the right answer is option number V, stapes. Let's see how. These are the bones of ear, malleus, incus and stapes. So here smallest one is the stapes. Next question is, signs of separation of placenta are the following except. इनमें से कौन सा प्लेसेंटा के सेपरेट होने का साइन नहीं है? ऑप्शन ए, लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड एट वल्वा. बी, गूस ऑफ ब्लड इज सीन. सी, फंडस राइजेस अप टू अम्बिलिकस. डी, टेम्परेचर राइजेस. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. टेम्परेचर राइज करने का कोई रिलेशन नहीं है प्लेसेंटा के सेपरेट होने से. इट्स साइंस आर लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड एट बल्वा, गूस ऑफ ब्लड, दैट इज ब्लड फ्लो जो काफ़ी हाई स्पीड का हो जाता है. फंडस राइजेस अप टू अम्बिलिकस. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स विद डैश लेंस. शॉर्ट साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाएगा स्पेक्टिकल्स में? यस, कॉन्वेक्स, सिलेंड्रिकल, कॉनकेव, ओपेक. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉनकेव. लेट्स सी हाउ. This short-sightedness condition is also known as myopia. During this, normally क्या रहता है, हमारी आईज में इमेज फॉर्मेशन जो है वो रेटिना के ऊपर होती है. लेकिन मायोपिक पर्सन में जब ऑब्जेक्ट जो वो इन्फिनिटी के ऊपर होता है तो इमेज जो है वो रेटिना के सामने ही बन जाती है, जिसके कारण इमेज जो है वो ब्लड बनती है. उसको क्लियर विजन नहीं रहता है. मीन्स शॉर्ट साइटेडनेस, नज़दीक की वस्तुएं तो क्लियरली दिखेंगी लेकिन दूर की वस्तुएं ब्लर्ड दिखेंगी. दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस. तो ये क्यों होता है? जो फार पॉइंट होता है पर्सन का, मायोपिक पर्सन का, वो नज़दीक आ गया होता है. तो अगर ऑब्जेक्ट जो वो इस फार पॉइंट के ऊपर होगा तब तो उसकी इमेज क्लियर बनेगी रेटिना के ऊपर. अगर इसके बाहर होगा, बियॉन्ड फार पॉइंट होगा, तो उसकी इमेज वो ब्लर्ड बनेगी. तो उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी के ऊपर, आपको उसको देखना है क्लियरली मायोपिक पर्सन को, तो उसके लिए कॉन्केव लेंस यूज़ किया जाता है. कॉन्केव लेंस को आई के आगे क्लोज रखा जाता है. जैसे ही इन्फिनिटी के और ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं तो वो कॉन्केव लेंस के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, तो कॉन्केव लेंस इन रेज को डाइवर्स कर देता है, जिससे जैसे ही ये डाइवर्स रेज कॉन्वेक्स लेंस जो आई लेंस रहता है उसके ऊपर स्ट्राइक करती हैं तो वो फोकस बनाती हैं अपनी रेटिना के ऊपर. जब रेटिना के ऊपर फोकस बनता है तो इमेज आपकी क्लियर बनती है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें क्या चीज़ ध्यान में रखी जाती है? तो ये बात है कि हाँ, कॉन्केव लेंस यूज़ किया जाता है. सेकंड क्वेश्चन, कॉन्केव लेंस ऐसा यूज़ किया जाता है जिसकी फोकल लेंस मायोपिक पर्सन के फार पॉइंट के इक्वल होती है. ठीक है, तभी वो कॉन्केव लेंस है वो फोकस रेटिना के ऊपर बना पाता है. अब रीज़न क्या रहता है क्यों शॉर्ट साइटेडनेस देखी जाती है? तो इसका मेन रीज़न रहता है आई वॉल जो उसका साइज़ बड़ा हो गया. आई वॉल का साइज़ अगर बड़ा हो गया तो उसका क्या ये रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड लेंस विल इंक्रीज. जब इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, फोकस पॉइंट दूर चला जाएगा, तो इमेज वो कहीं भी बीच में बन जाएगी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना ही बन जाएगी. सेकेंड रीज़न रहता है फोकल लेंथ जो है वो लेंस की जो फोकल लेंथ है दैट इज़ स्मॉल एफ, वो कम हो जाती है. अब फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इमेज जो वो रेटिना से पहले ही बन जाएगी. दीज आर टू रीजंस. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेबर टेक्स प्लेस आफ्टर डैश डेज ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के कितने दिनों बाद लेबर होती है? यस, 300, 365, 240, 280. The right answer is option number D, 280. After 280 days of last menstrual period, labor takes place. Next question is, central nervous system includes. Central nervous system क्या include करता है? Option number A, spinal cord and brain. B, cranial nerves and spinal cord. C, brain and cranial nerves. D, none of these. Yes, the right answer is option number
A, spinal cord and brain. Let's see. Nervous system is divided into main two parts, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system consists of brain and spinal cord, and peripheral nervous system consists of cranial nerves and spinal nerves. Clear? So central nervous system, option number A is the right answer, spinal cord and brain. Next, normal sugar level in our blood is. It's a very easy question. और स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बताऊंगी, ये आप खुद बताओगे मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में. What can be the right answer? Option number A, 95 to 125 milligram per 100 ml. 65 to 130 milligram per 100 ml. C, 80 to 120 milligram per 100 ml. D, 90 to 140 milligram per 100 ml. Yes? Comment the right answer in the comment box. Next question is, signs of true labor are the following except. इनमें से कौन सा ट्रू लेबर का साइन नहीं है? फर्स्ट वन इज द डायलेशन ऑफ द यूट्रस, बी fetal movement, C painful rhythmic uterine contraction, D all of these. Yes, the right answer is option number B, fetal movement. fetal movement जो वो पहले भी होती रहती है, तो it's not a sign of true labor. I think all the questions are clear. Thank you. For any query or doubt, you can consult our professional on the WhatsApp number. Okay.